what we have is, we have the aggregate demand schedule. So we have income, which is represented as Y, then we have consumption, which is represented as C, and then we have investment, which is represented as I. Then we are going to find aggregate demand, which is sum of consumption expenditure and investment expenditure. So how are we going to find this? Now, aggregate demand is equal to C plus I. So in our first case, we have C as 40 and investment as 20. So what is aggregate demand? 60. So remember, we are taking a two sector model. ठीक है, तो हम हमारे एनालिसिस को सिंपल करने के लिए टू सेक्टर मॉडल लेते हैं एंड इसीलिए एग्रीगेट डिमांड हम लेते हैं एज सम ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. नाउ सेकेंड केस में हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया? सेकेंड केस में हमारा एग्रीगेट डिमांड होगा 120 प्लस 20 दैट इज 140. नाउ नेक्स्ट 200 plus 20 gives us 220. Next, 280 plus 20 gives us 300. Next, 360 plus 20 gives us 380. Next, 440 plus 20 gives us 460. So now, what is going to be our diagrammatic representation of AD? So now, on the x-axis, what do we have? On the x-axis, we have our income. And on the y-axis, we represent our consumption, investment and aggregate demand, all three. Now, what do we observe from this table? We see that our investment is constant throughout. So, I have taken an example where investment is taken as constant just to simplify our analysis. ठीक है, तो अब हमने investment constant लिया ताकि हमारा analysis simple हो. Now, इस इन्वेस्टमेंट जो कांस्टेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. ये जो हमने थ्रू आउट इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट लिया है, इसे हम बोलेंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. अब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का क्या मीनिंग होता है कि हमारा इनकम चेंज हो रहा है, लेकिन जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है. मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड देयरफॉर इट इज नोन एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो पहला हमने देखा कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट है कॉन्स्टेंट थ्रू आउट. ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारा इन्वेस्टमेंट ही प्लॉट करेंगे, लेकिन हमारा एक्स एक्सिस पे क्या है? इनकम, that is 0, 100, 200, 300, 400 and 500. So we'll plot this on our x-axis. So 100, 200, 300, 400 and 500. सबसे पहले हम हमारा क्या प्लॉट करेंगे? इन्वेस्टमेंट कर्व. तो उसके लिए वाई एक्सिस पे हम कैसे प्लॉट करेंगे? वाई एक्सिस पे है 40, 120, 200. सो हाउ आर वी गोइंग टू प्लॉट दिस? ये हो जाएगा, लेट्स सी 40, 80, 120, 160, 200, 250
240, 280, 300, 320, sorry, and then 360. So 360 and then we have 440. So we'll plot this like this. Let's say this is 400, then we have 440. Right. So this is our x-axis and our y-axis. Now we are going to plot our investment curve first. So our investment is constant, that is 20. तो इन्वेस्टमेंट 100 इनकम पे भी हमारा 20 है, ठीक है. 200 जब इनकम है तब भी हमारा इन्वेस्टमेंट 20 ही है. 300 पे भी 20 है, 400 पे भी 20 है, 500 पे भी 20. तो हमारा ग्राफ कैसे दिखेगा? वुड बी लाइक दिस. राइट. दिस इज गोइंग टू बी अ investment curve. We'll represent it by I. Now let's see how our consumption curve looks like. So for zero level of income, our consumption is 40. So now income is 0 and we have a consumption as 40. Now for 100, we have consumption as 120. So this is 120. For 200, we have 200. So for 200 level of income, we have 200 as our consumption. So this point will be over here. Now for 300 के लिए हमारा consumption है 280. तो 300 के लिए 280. 400 के लिए हमारा क्या है? 400 के लिए we have 360 and for 500 we have 440. तो 360 and 440. And for 500 we have 440. So our consumption curve would look something like this. So now this is our consumption curve. So for zero level of income, we have our aggregate demand as 60. So it will be here. Then we have 140, 220, 300, 380 and 460. So we are going to plot these points as well. So for 100, it's 140, somewhere over here. Now for 200, we have 220, somewhere over here. Then we have 300, 380 and 460. For 400, we have 380. And for 500, we have 460, somewhere above here. Right. So these were the points. Now let's see how our aggregate demand curve looks like. So now
Our aggregate demand curve would look something like this. So this is our aggregate demand curve. Now, what do we observe from this graph? So the first thing that we observe is, so the first observation is autonomous consumption. Now, first I'll explain what autonomous consumption means on the graph. So autonomous consumption here means that even when our income was zero, there was a certain level of consumption. मतलब income zero है, फिर भी consumption तो 40 है ना, तो ये वाला. So income is zero, yet our consumption is 40. So this portion. So this is what is autonomous consumption. अब ऑटोनोमस कंजम्पशन का क्या मीनिंग होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब कि जब इनकम जीरो भी होता है तो भी हमने कुछ ना कुछ तो कंज्यूम किया है, राइट? सो इट मीन्स दैट even when the income is zero, there is going to be a certain level of consumption in an economy. और ये consumption क्यों होगा? There is going to be certain minimum consumption in an economy. तो income zero है, yet हमारा consumption क्यों हो रहा है? ये इसीलिए होता है क्योंकि for survival. अगर हमारा इनकम नहीं है फिर भी हम कुछ कंज्यूम तो करेंगे फॉर आवर सर्वाइवल, बेसिक नीड्स मीट करने के लिए, राइट? तो लेट्स से आवर एग्जांपल वुड बी, लेट्स से जैसे स्टूडेंट हो गया. नाउ आप सब स्टूडेंट्स हो, लेकिन आप लोग कुछ अर्न नहीं करते हो. राइट नाउ यू आर नॉट अर्निंग, यू आर जस्ट स्टडिंग, बट आप लोगों का इनकम तो जीरो है, लेकिन फिर भी आप कुछ कंज्यूम करते हो, जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, एजुकेशन हो गया. तो ये सब तो चीजें आप कंज्यूम कर रहे हो. आप लोगों का इनकम जीरो है, लेकिन ये आपके मिनिमम कंजम्पशन है जो आपके सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है. तो इसे ही हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन. ठीक है, तो इसे बोलेंगे ऑटोनोमस कंजम्पशन. ठीक है, तो आप लोग ये कंजम्पशन पूरा कैसे करते हो? सो इन अ वे यू आर बोरोइंग फ्रॉम योर पेरेंट्स. आपके पेरेंट्स आपको ये सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे फूड, शेल्टर, बेसिक मिनिमम नीड्स आपके पूरे कौन करते हैं? आपके पेरेंट्स पूरे करते हैं. सो इन अ वे यू आर बोरोइंग फ्रॉम देम. ठीक है, तो जो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है या तो वो बोरोइंग से होता है, ठीक है, या नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे अनएम्प्लॉयड पर्सन का. तो लेट्स से एक पर्सन है, अब वो अनएम्प्लॉयड है. ठीक है, तो अभी वो अनएम्प्लॉयड हो गया तो उसका इनकम तो बिल्कुल जीरो हो गया है, लेकिन फिर भी वो कुछ कंज्यूम करेगा. क्यों? वो कैसे कंज्यूम करेगा? वो अपने या तो जो पास्ट सेविंग्स है, जब वो एम्प्लॉयड था तो उसने कुछ सेव किया होगा, तो या तो वो पास्ट सेविंग्स से अपना कंजम्पशन पूरा करेगा या फिर किसी से बोरो करेगा. जैसे स्टूडेंट के केस में हमने बोरो किया था हमने हमारे पेरेंट्स से, तो ये. ठीक है, तो जो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है, बेसिकली हम या तो पास्ट सेविंग से हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन करते हैं या फिर हम किसी से बोरो करते हैं. सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ. ठीक है, तो ये हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन का कि इनकम तो जीरो है, येट हम कुछ ना कुछ कंज्यूम हमेशा करते हैं क्योंकि इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. नाउ उसके बाद अगला ऑब्जर्वेशन है, सो ऑटोनोमस कंजम्पशन समझ गया. नाउ द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज the consumption curve slopes upward.
तो हम ये डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। तो ये हमारा कंजम्पशन कर्व है, सो इट स्लोप्स अपवर्ड। इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ रहा है हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, ठीक है। सो एज आवर इनकम इंक्रीजेस आवर कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड इसी रीजन के वजह से जो हमारा कंजम्पशन कर्व है वो हमेशा अपवर्ड स्लोप करता है, ठीक है। सो इट्स एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। नाउ लेट्स लुक एट आवर वैल्यूज एज वेल। सो हमारा इनकम बढ़ रहा है 0, 100, 200, 300, 400, 500, और हमारा साथ में कंजम्पशन भी बढ़ रहा है 40, 120, 200, 280, 360 एंड 440। तो इनकम के बढ़ने से हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, इसीलिए हमारा जो कंजम्पशन कर्व होता है वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है ना। ये समझ आ गया। अब इन्वेस्टमेंट कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व। तो ये क्या है? ये है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इट्स एन हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये पैरेलल क्यों है एक्स एक्सिस से? क्योंकि हमने हमारे अजम्पशन में क्या किया था, हमने लिया था कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, मतलब हमने हमारा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट लिया था, दैट इज 20, ठीक है। क्योंकि हमने हमारा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट लिया था मतलब हमारा इनकम तो चेंज हो रहा है लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, एंड इसी रीजन की वजह से जो हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। नाउ ये वाला भी पॉइंट कवर हो गया। नेक्स्ट इज आवर एडी कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप। अब पॉजिटिव स्लोप का मीनिंग क्या होता है? नाउ पॉजिटिव स्लोप का मीनिंग होता है कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रहा है इकोनॉमी के अंदर, एंड इसीलिए जो हमारा एग्रीगेट कर्व है वो भी अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग इसलिए है बिकॉज एज इनकम इंक्रीजेस आवर एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो राइजेस इन एन इकोनॉमी, एंड इसीलिए हमारा जो कंजम्पशन कर्व है और एग्रीगेट डिमांड कर्व है दोनों ही अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। सो व्हेन अब पॉजिटिव स्लोप कब होता है? जब दो वेरिएबल्स जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं, मतलब अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज हो रहे हैं, तब होता है पॉजिटिव स्लोप। अब अगर डायरेक्शंस ऑपोजिट है, मतलब एक चीज बढ़ रही है लेकिन दूसरी चीज फॉल हो रही है, तो तब होता है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग को। तो इस केस में दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए हमारा जो कर्व रहेगा वो अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा, ठीक है। तो ये वाला भी पॉइंट कवर हो गए। नाउ अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो हमेशा कंजम्पशन कर्व के पैरेलल रहेगा, मतलब ये एग्जैक्ट पैरेलल है। क्यों ऐसा है? नाउ लेट्स लुक एट आवर फॉर्मूला। हमारा एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या था? सो our formula for aggregate demand was aggregate demand is equal to C plus I, ठीक है। सो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C plus I। अब एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच में मतलब जो डिफरेंस है वो क्या होगा? सो एग्रीगेट डिमांड माइनस कंजम्पशन, ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा हो गया, इसके बीच का जो गैप है वो रिप्रेजेंट करता है इन्वेस्टमेंट। नाउ ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल क्यों है? सो इसका सिंपल रीजन है, ये पैरेलल इसीलिए है क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आय है, ठीक है। और आय हमने हमारे एनालिसिस में क्या लिया है?
कांस्टेंट। तो हमने हमारे एनालिसिस में आई कांस्टेंट लिया है, मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, एंड इसीलिए जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो पैरेलल है कंजम्पशन कर्व के। सो दीज वर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड। नाउ अब एग्रीगेट डिमांड कंप्लीटली समझ चुके हैं,